So here is outline of our two-day discussion: introduction, grading system, complications, pre-operative assessment, intra and post-operative management of patients with hypertension. So coming to introduction, uh, constantly elevated blood pressure more than systolic more than 140 millimeters of mercury and diastolic more than 90 millimeters of mercury is called hypertension. So hypertension has two types: essential or primary hypertension, which accounts for 95% of total hypertensive cases, and its etiology is unknown. And second one is secondary hypertension, which accounts for 5% of total hypertensive patients. Their etiology is known, and uh, there's definitely some identifiable organic cause. So, uh, so the hypertension and overall is leading cause of morbidity and mortality, especially in patients undergoing surgical procedures and anesthetic. Prevalence, when we talk about prevalence of hypertension, it's about 20 to 25% in all surgical patients, and most of the patients are elder. Uh, Please note that elderly patients are almost 50% of elderly patients found to be hypertensive. When we talk about long-standing and uncontrolled hypertension, yes, it accelerates atherosclerosis and ultimately organ damage. So, coming to classification or grading of hypertension, a new grading system. Uh, uh, Hello. जी जहांगीर कंटिन्यू रखो, आ So, रही है आवाज, आ रही है। thank you, sir. हाँ जी। So, normal blood pressure reading 120 systolic and 80 diastolic. Below 120, 80 is counted into normal, and pre-hypertension 120 to 139 systolic and 80 to 89 diastolic blood pressures are categorized into pre-hypertension, and mild hypertension or grade 1 hypertension is systolic when systolic blood pressure ranges from 140 to 159 and diastolic ranges from 90 to 99 millimeters of mercury. And grade 2 hypertension when pressures are equal or more than 160 millimeters of mercury. It is grade 2 hypertension, and grade 3 or severe hypertension when systolic blood pressure exceeds 180 millimeter of mercury and diastolic exceeds 120 millimeter of mercury. It's severe hypertension or hypertensive urgency. And if there is organ damage, uh, then it's hypertensive emergency. तो ये थी ग्रेडिंग। अब हम आते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी और एटियोलॉजी की तरफ। हाइपरटेंशन की जो पैथोफिजियोलॉजी है वो एग्जैक्ट जो मैकेनिज्म है हाइपरटेंशन का कि हाइपरटेंशन कैसे होती है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी कंप्लीटली अंडरस्टूड नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो हम मतलब कह सकते हैं कि उस वजह से हाइपरटेंशन होगी। एक तो है कि सोडियम एक्सक्रीशन इम्पेयर्ड होती है इन पेशेंट्स में। सोडियम एक्सक्रीशन इम्पेयर्ड होने की वजह से सिंथेटिक सिस्टम ओवर एक्टिविटी की वजह से या रीनल एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम की ओवर एक्टिविटी की वजह से हाइपरटेंशन। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हमने देखनी, एक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, एक जेनेटिक टेंडेंसी है। उन पेशेंट्स में जिनमें सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो, फिजिकल इनएक्टिविटी हो, सोडियम इनटेक ज़्यादा हो, क्रॉनिक हाई अल्कोहल इनटेक हो, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो और पोटाशियम और कैल्शियम इनटेक कम हो, उनमें हाइपरटेंशन का इंसिडेंस ज़्यादा होता है। तो क्रॉनिक हाइपरटेंशन में कार्डियक आफ्टरलोड बढ़ेगा, कार्डियक आफ्टरलोड बढ़ने से कंसेंट्रिक एलवीएच होगा और डेफिनेटली डायस्टोलिक जो फंक्शन है वो अल्टर होगा। तो एक और चीज़ इसमें ऐड होने वाली है कि जो सेरिब्रल और रीनल परफियन है वो ऑटो रेगुलेटेड होती है सर्टेन प्रेशर पे। 60 to 160 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ये मैप की बात हो रही, मीन आर्टीरियल प्रेशर 60 to 160 मिलीमीटर पे इसकी सेरिब्रल की परफियन होती है ऑटो रेगुलेटेड, और इसी तरह रीनल परफियन भी ऑटो रेगुलेटेड होती है। हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में ये कार्ब
राइट वर्ड शिफ्ट हो जाती है, मतलब हायर प्रेशर पे पेशेंट की परफियन रेगुलेटेड होती है। तो एनेस्थीसिया में हमने ख्याल रखना है कि इन पेशेंट्स को हाइपरटेंशन की तरफ नहीं लेके जाना। अगर इनका मीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से, हाइपरटेंसिव पेशेंट का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 मिलीमीटर मर्करी से कम होगा तो उसको हम हाइपरटेंशन लेबल करेंगे और अकॉर्डिंगली मैनेज करेंगे। तो ब्लड प्रेशर, आर्टीरियल ब्लड प्रेशर का कंट्रोल है, कंट्रोल का मैकेनिज्म वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड कॉम्प्लेक्स है। न्यूरल, ह्यूमरल और रीनल मैकेनिज्म है, 3 तरह के मैकेनिज्म। इमीडिएट है, विद इन सेकेंड्स जो रिस्पांस होगा वो ऑटोनोमिक रिस्पांस होगा। ब्लड प्रेशर में जो भी चेंजेस आती हैं इमीडिएटली विद इन सेकेंड्स वो सेंस की जाती हैं बायो रिसेप्टर से या सेंट्रली हाइपोथैलेमस और ब्रेन स्टेम एरिया इसको सेंस करते हैं और इसको अकॉर्डिंगली एड्रेस करते हैं। अगर ब्लड प्रेशर कम है तो फिर सिंथेटिक एक्टिविटी होगी, और ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा है तो फिर पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी होगी, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा। तो इंटरमीडिएट कंट्रोल की बात करें तो ये मिनट्स टू आवर्स रिस्पांस होता है, और सर्कुलेटिंग वॉल्यूम जो है उसको कंट्रोल किया जाता है। एट्रिया और ग्रेट वेन्स पे रिसेप्टर्स होते हैं, प्रेशर रिसेप्टर्स होते हैं, वो कंट्रोल करते हैं। दूसरा अगर मैकेनिज्म है इसका एंटी डायूरेटिक हार्मोन का और एट्रियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर का, जो कि मॉड्यूलेट करते हैं रीनल रिलीज को सिंथेटिक नर्वस सिस्टम से। तो लॉन्ग टर्म की अगर बात की जाए तो लॉन्ग टर्म में रीनल मैकेनिज्म्स हैं, जिनमें वेल नोन आप सब अवेयर हैं कि रीनल एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है, वो कैसे कंट्रोल करता है, वो नाइट्रोयूरेसिस कराता है और नाइट्रोयूरेसिस के नतीजे में डायूरेसिस कराता है और हाइपरटेंशन को कंट्रोल। तो हमने बात की शुरू में कि हाइपरटेंशन की 2 टाइप्स हैं, प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन मोर देन 95% केसेस में होती है, और सेकेंडरी हाइपरटेंशन की डेफिनेटली कोई ना कोई अंडरलाइंग काज होगी। तो उसकी काजेज हम सिस्टम वाइज कर लेते हैं। रीनल में अगर देखें तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, ग्लोमेरुलर डिजीज है, रीनोवैस्कुलर हाइपरटेंशन है, और एंडोक्राइन में देखें तो कुशिंग सिंड्रोम है, कॉम सिंड्रोम है, हैपो एंड हाइपरथायराइडिज्म है, हाइपरपैराथायराइडिज्म है एंड थियोक्रोमोसाइटोमा। दूसरी काजेस देखें तो उसमें स्लीप एपनिया, कॉर्टेशन ऑफ एओर्टा, प्रेगनेंसी में यस, प्रेगनेंसी में एक तो सर्कुलेटिंग वॉल्यूम ज़्यादा होता है, पीएएच आपने सुना होगा, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, एक्लेम्शिया, प्री एक्लेम्शिया, ये सारी चीज़ें आती हैं, और एक्सेसिव अल्कोहलिज्म। ये थी काजेस। और अब हम कॉम्प्लिकेशन की तरफ हैं, तो कॉम्प्लिकेशन को हम सिस्टम वाइज करते हैं। हार्ट से रिलेटेड जो हैं कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस हैं, left ventricular hypertrophy due to increased afterload and peripheral vascular resistance, and diastolic dysfunction due to LVH, MI, myocardial ischemia, infarction, or even heart failure in later stages. Atherosclerotic coronary artery disease, yes, जैसे मैंने पहले बताया कि जो हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन एक्सेलरेट करती है एथेरोस्क्लेरोसिस को और ऑर्गन डैमेज को। एथेरोस्क्लेरोसिस होगी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज होगी, उसके नतीजे में मायोकार्डियल इस्कीमिया या इन्फेक्शन होगा। फिर सर्कुलेशन में पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज है, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में ये कॉमन होती है। आई में अगर देखें तो हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी है। किडनी में ग्लोमेरुलर इंजरी है, ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस है, रीनल ट्यूबुलर इस्कीमिया है, और एंड स्टेज रीनल फेलियर है। अच्छा, ये डिजीजेस या किडनी का डैमेज है वो एग्जिस्टिंग अगर डायबिटीज होगी या कोई और डिजीजेस होंगे उनमें ये ज़्यादा होगा। ब्रेन में सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट है, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट होगा हाइपरटेंसिव इमरजेंसी ग्रेड 3, जिसे हम कह चुके हैं सेवियर हाइपरटेंशन की वजह से उसको एन्यूरिज्म है तो वो ब्लीड कर सकते हैं। और इसे हम लेबल कर चुके हैं हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। अगर सेवियर हाइपरटेंशन होगी और ऑर्गन डैमेज होगा तो उसको हम कहेंगे सेवियर हाइपरटेंशन या हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। लेकुनर इन्फार्क्ट्स हैं, इम्पेयर्ड कॉग्निशन है, कॉग्निटिव फंक्शन इम्पेयर्ड होगा, और हाइपरटेंसिव एन्केफेलोपैथी। अब हम आते हैं एनेस्थीसिया मैनेजमेंट।
हाइपरटेंसिव पेशेंट हमारे पास आया प्री एनेस्थीसिया क्लिनिक पे, तो उसको हमने असेस कैसे करना है। हाइपरटेंशन एक ऐसी डिजीज है जो साइलेंट किलर है। तकरीबन 30% पेशेंट खुद अनअवेयर होते हैं कि उन्हें हाइपरटेंशन है या नहीं है। तो वो हम जैसे ब्लड प्रेशर की रीडिंग लेते हैं तो उस पर हमें पता चल जाता है। सवेरिटी है, हिस्ट्री एग्जामिनेशन हमारी स्कीम रहेगी। प्री ऑपरेटिव असेसमेंट में हिस्ट्री लेंगे, फिर एग्जामिनेशन करेंगे, फिर लैब्स इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, उसके बाद हम अपना प्लान करेंगे, एनेस्थीसिया का प्लान होगा, उसकी प्रिपरेशन करेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री में हमने देखना है कि सवेरिटी ऑफ डिजीज क्या है और कब से है, हाउ लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन है। ड्रग थेरापी पे है तो कौन सी ड्रग ले रहा है, कंट्रोल कैसा है उस ड्रग पे, और पेशेंट की कंप्लायंस कैसी है, पेशेंट ड्रग लेता भी है या नहीं लेता। अक्सर पेशेंट जो पोली फार्मेसी पे होते हैं, मल्टीपल ड्रग थेरापी पे होते हैं, तो वो नॉन कंप्लायंट होते हैं या पुअर कंप्लायंट होता है। हाइपरटेंसिव पेशेंट 40% तक हाइपरटेंसिव पेशेंट नॉन कंप्लायंट होते हैं या पुअरली कंप्लायंट होते हैं। फिर हमने हिस्ट्री में देखनी है हाइपरटेंसिव कॉम्प्लिकेशन या अदर को एग्जिस्टिंग डिजीजेज हैं, जैसे डायबिटीज है। अच्छा, हाइपरटेंसिव कॉम्प्लिकेशन हमने सिस्टम वाइज, जैसे पीछे हमने डिस्कस की, सीवीएस को देखेंगे। सीवीएस में स्ट्रोक है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, सिनकपी का अगर पेशेंट बता देता है, तो इस तरह की चीज़ पूरी हिस्ट्री हमने डिटेल हिस्ट्री सिस्टम वाइज लेनी है। और नेचर एंड अर्जेंसी ऑफ प्रोसीजर, ये हमने देखना है कि प्रोसीजर हम क्या करने जा रहे हैं, उसकी नेचर क्या है, हाउ अर्जेंट प्रोसीजर इज। फिर एग्जामिनेशन में है तो एग्जामिनेशन हम जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, वाइटल्स लेते हैं, उसका बीएमआई हम ले लेंगे। जो 20 पेशेंट है, एक्सीडेंट लाइफस्टाइल एक रिस्क फैक्टर है हाइपरटेंशन के लिए। तो उसके बाद ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर के लिए हमने स्टैंडर्ड टेक्निक यूज करनी है। सुपाइन पोजीशन में लेना है और स्टैंडिंग पोजीशन में लेना है। अगर पेशेंट बाहर से आया तो फिजिकल एक्टिविटी करके आया तो उसको थोड़ी देर बिठाना है, उसके बाद उसकी रीडिंग लेनी है। इसी तरह ब्लड प्रेशर में हमने ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन को भी चेक करना है। फिर फंडोस्कोपी है, डेफिनेटली आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, हाइपरटेंसिव चेंजेस देखेंगे रेटिना की, वो एविडेंट होगी। एलवीएच अगर पेशेंट का है तो उसमें S4 कार्डियक गैलप होगा। इसी तरह अगर पेशेंट की लो इजेक्शन फ्रैक्शन है, पल्मोनरी एडिमा के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है, तो उसमें S3 गैलप हो सकता है। फिर अब्डोमिनल और रिनल मैस हम एग्जामिनेशन पे देखेंगे, आर्टीरियल ब्रूई देखेंगे, रीनल ब्रूई है, कैरोटिड ब्रूई है। तो ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे एग्जामिनेशन में। फिर लैब्स और इन्वेस्टिगेशन हम दो में डिवाइड कर लेते हैं। बेसलाइन हम करेंगे और दूसरी करेंगे अदर्स आ जाती है। बेसलाइन में हमारी हीमोग्लोबिन लेवल देखेंगे, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन से डायरेक्टली लिंक्ड है, ब्लड शुगर है, यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो अगर रीनल डिजीज है तो उसमें क्रेटिनिन डेफिनेटली डीरेंज होगी। तो इसी तरह अगर पेशेंट डायूरेटिक पे है तो उसमें पोटाशियम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेशेंट डाइजॉक्सन पे है तो फिर भी हाइपोकैलेमिया नहीं होना चाहिए पेशेंट को। सीरम कोलेस्ट्रॉल है, यूरिक एसिड है, यूरिन डिपस्टिक। अच्छा, मैक्रो एल्बुमिन यूरिया हाइपरटेंसिव की अर्ली वार्ड, अगर रीनल डैमेज हो रहा है, हाइपरटेंसिव रीनल डैमेज है तो उस पेशेंट में मैक्रो एल्बुमिन यूरिया उसमें आएगा। 12 लीड ईसीजी पे हम एमआई देखेंगे, साइंस ऑफ एमआई, एलवीएच, स्ट्रेन पैटर्न है, कंडक्शन ऑफ नॉर्मैलिटीज है। Others investigation usually not required unless patient has some organ damage or some advanced disease. तो उसमें हम एकोकार्डियोग्राफी करवाएंगे। एकोकार्डियोग्राफी सेंसिटिव टेस्ट है, चैम्बर्स देखने के लिए, वेल्व देखने के लिए, एओर्टिक स्टेनोसिस को हमने देखना है। फिर डॉपलर स्टडीज हैं, तो कैरोटिड आर्टरीज की एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस हैं, वो हम रोल आउट कर लेंगे। चेस्ट एक्सरे यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स में जिसमें कोई रिस्क फैक्टर और नहीं है, उसमें इंडिकेटेड नहीं होता। प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन हमने करनी है। हमने देखना है कि इलेक्टिव प्रोसीजर है या इमरजेंसी प्रोसीजर है। इमरजेंसी है तो उसको हमने एज सच लेके चलना है और ब्लड प्रेशर हमने कंट्रोल करना है आईवी एजेंट से। अगर इलेक्टिव है और सिंगल रीडिंग है 180 110 से ज़्यादा की, तो उस पर हम रेफर नहीं करेंगे, हम दोबारा रीडिंग ले लेंगे, रीअश्योर करेंगे पेशेंट को हम। अगर
उसकी फर्दर रीडिंग्स भी आ रही हैं, हायर रीडिंग्स आ रही हैं, सवेयर हाइपरटेंशन है तो उसको रेफर करेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे ओरल एंटी हाइपरटेंसिव पे। आफ्टर 4 to 6 वीक्स उसको दोबारा रीशेड्यूल करेंगे। एनेस्थीसिया प्लान है, एनेस्थीसिया में हमने देखना है कि टाइप ऑफ सर्जरी क्या है, कोमॉर्बिडिटीज क्या है और पेशेंट की चॉइस क्या है। बाज़ औक़ात कोई सर्जरी है रीजनल में हो सकती है, पेशेंट कहता है कि मैंने रीजनल नहीं लेना, तो उसमें हमें डेफिनेटली उसको जीए में करवाना है। रीजनल का जो बेनिफिट है, रीजनल सिंथेटिक रिस्पांस को अपटर्न करेगा और उससे सिंथेटिक स्टिमुलेशन नहीं होगी। प्री मेडिकेशन जो है, प्री मेडिकेशन एलिगेट्स एंजाइटी स्पेशली वाइट कोट सिंड्रोम। मिडाजोlam is excellent to reduce anxiety. And remember, ACE inhibitor, angiotensin receptor blockers, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर अगर वो सर्जरी की मॉर्निंग पे लेगा तो उससे इंट्राऑपरेटिव हाइपरटेंशन का जो इंसिडेंस है वो इंक्रीज हो। इसी तरह अगर बीटा ब्लॉकर हम नहीं देते तो वो इंट्रा ऑफ एमआई को प्रेसिपिटेट करेगा, जो उससे टैकीकार्डिया होगा। बीटा ब्लॉकर विड्रॉल से हाइपरटेंशन होगी और टैकीकार्डिया होगा, तो उससे एमआई हो सकता है पेशेंट। हमारे गोल्स क्या हैं? गोल्स हैं हमारे कि हमने ब्लड प्रेशर, मीन आर्टीरियल प्रेशर को हमने विद इन 10 to 20% ऑफ बेस लाइन प्री ऑपरेटिव रीडिंग के अंदर रखना है और कॉम्प्लिकेशन से बचाना है पेशेंट। मॉनिटरिंग यूजुअली एएसए स्टैंडर्ड मॉनिटरिंग इज सफिशिएंट। ईसीजी, नॉन इनवेसिव ब्लड प्रेशर, एंटाइडल CO2, SpO2। इनवेसिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग is indicated where major BP swings and are expected, and major where we are going for major surgery. Urinary catheterization, अगर सर्जरी प्रोलॉन्ग है, मोर देन 2 आवर्स की सर्जरी है, फ्लूइड्स हमने ज़्यादा देने हैं, तो उसमें हम यूरिनरी कैथेटराइजेशन भी कंसीडर करेंगे। रीजनल प्रेफरेबल है, रीजनल प्रेफरेबल इसलिए है कि क्योंकि सर्जिकल स्टिमुलाई जो रिस्पॉन्स होगा उसको ब्लंट करेगा रीजन। और जीए अगर करना है तो जीए में हमने एक बैलेंस टेक्निक यूज करनी है। इंडक्शन पे हमने 3 चीजें देखनी है, 3 चीजों का हमने ख्याल रखना है। नंबर 1, जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं ये वॉल्यूम डिप्लेटेड होते हैं। नंबर 2, जो हमारे एनेस्थेटिक्स हैं ये सारे वेजोडाइलेटर हैं या कार्डियक डिप्रेशन है या दोनों। वेजोडाइलेटर भी होते हैं, कार्डियक डिप्रेशन भी। नंबर 3, लारिंजोस्कोपी और एंडोट्रैकियल इंटुबेशन के प्रेशर रिस्पांस आना है, उसको हमने ब्लंट करना है। ड्रग्स हमने जो चूज करनी है, प्रोपोफोल है, बारबिटूरेट है, बेंजोडाइजेपिन है और अटोमेटेट है, ये सारे सेफ हैं, लेकिन इनकी टाइट्रेटेड डोसेज करनी है। केटामीन सिंगल एज अ सिंगल एजेंट यूज नहीं करना, क्योंकि इससे मार्क हाइपरटेंशन होगी। अगर हाइपरटेंशन होती है इंट्राप या इंडक्शन पे हाइपरटेंशन होती है तो उसको हम फ्लूइड देंगे, फ्लूइड के साथ फिनाइलएथिलीन के स्मॉल डोज में पोलिसिस देंगे, क्योंकि हमारी जो एनेस्थेटिक्स हैं वो सारे वेजोडाइलेटर हैं या कार्डियक डिप्रेशन है, तो वेजोडाइलेटेशन को हमने एड्रेस करना है और पेशेंट हमारा वॉल्यूम डिप्लेटेड। इंट्रा ऑपरेटिव अगर हाइपरटेंशन है तो इंट्रा ऑपरेटिव हाइपरटेंशन की हमने सबसे पहले कॉज देखनी है, कॉज क्या है। उस कॉज अगर रिवर्सिबल है तो उसको हमने एक्सक्लूड करना है, जिसमें लाइट प्लेन ऑफ एनेस्थीसिया है, पेन है, एनेस्थेटिक डेप्थ है नहीं है, हाइपोक्सीमिया है, हाइपरकार्बिया है, तो इन चीज़ों का हमने वो करना है। अगर फिर भी कोड कंट्रोल नहीं हो रही इन चीज़ों को एड्रेस करने के बाद, तो फिर हमने सोचना है कि कोई इसको सेकेंडरी कॉज हो सकती है, जैसे पियोक्रोमोसाइटोमा। तो एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी हमारे पास वाइड रेंज है एंटी हाइपरटेंसिव की, उनमें IM भी हम कुछ एजेंट दे सकते हैं और बाकी हम IV दे सकते हैं। उनमें बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स हैं, मेटोप्रोलोल, एस्मोलोल और लबिडोलोल है। फिर नेट्रोग्लिसरीन है, नेट्रोप्लुसाइड है, निकार्डिपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, फेनोल्डोपाम है, वेजोडाइलेटर है, हाइड्रोलाजीन है। अच्छा, हमने मेटोप्रोलोल अगर दे रहे हैं या एस्मोलोल बीटा ब्लॉकर कोई भी दे रहे हैं, तो हमने कोई भी ड्रग दे रहे हैं तो उसकी हमने कंट्राइंडिकेशन देख लेनी है। पेशेंट है उसको हिस्ट्री है, एस्थमेटिक पेशेंट है, हम कोशिश करेंगे ये एजेंट हम अवॉइड करेंगे। पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट को कैसे मैनेज करना है, वो एक तो एडिक्वेट एनाल्जेसिया है। पोस्ट ऑपरेटिव हाइपरटेंशन कॉमन होती है उन पेशेंट्स में जिनकी
hypertension pre-operatively poorly controlled. तो क्लोज मॉनिटरिंग हमने करनी है पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में और पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में. पोस्ट ऑपरेटिवली हमने अगर सस्टेन्ड एलिवेशन होगी ब्लड प्रेशर में, क्लोज कैविटी है तो पेशेंट ब्लीड कर सकता है. जैसे ब्रेन सर्जरी हुई तो उनमें पेशेंट ब्लीड कर सकता है. इसी तरह वुंड हीमाटोमस बन सकते हैं. वेस्कुलर सर्जरी तो वेस्कुलर सुचर लाइन डिस्टर्ब हो सकती है. रिकवरी में अगर पेशेंट चला गया है तो उसमें हमने हाइपरटेंशन, उसमें भी हमने हाइपरटेंशन हो रही है तो उसमें हम कॉज देखेंगे. ये यूजुअली हाइपरटेंसिव इन रिकवरी, हाइपरटेंशन इन रिकवरी इज मल्टीफैक्टोरियल. एंजाइटी है, पेन है, वॉल्यूम ओवरलोड है, ब्लैडर डिस्टेंशन है, या इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है. इनको हमने एड्रेस करना है. हाइपोक्सिया है, हाइपरकार्बिया है, उनको हमने एड्रेस करना है और मैनेज करना है. एक चीज जो मिस हो गई थी वो थी इंडक्शन पे हमने सिंथेटिक रिस्पांस को ब्लंट करना है. इंडक्शन पे सिंथेटिक रिस्पांस को ब्लंट करना है. तो उसको हम कैसे ब्लेंड करेंगे? ओपियाइड बेस्ड इंडक्शन करेंगे. लार्जली पेशेंट्स की ओपियाइड बेस्ड इंडक्शन करेंगे. लिग्नोकेन हम दे सकते हैं, लाइडोकेन, डेक्समेथासोन है, मैग्नीशियम सल्फेट है, डिफरेंट एजेंट्स हम यूज करते हैं. तो इसको हमने ब्लेंड करना है. टेक होम मैसेज आज का ये है कि देयर इज well established link between hypertension and cardiovascular disease. Or the second one is cerebral renal perfusion are auto-regulated. In hypertension, auto-regulation curve is the right word shifted. So high BP disrupts blood-brain barrier. इससे एडिमा होगा, एनकेफेलोपैथी या स्ट्रोक हो सकता है. फिर अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव है, इलेक्टिव सर्जरी है, उसको हम रेफर करेंगे. 4 to 6 वीक्स की ट्रीटमेंट देंगे. इस दौरान हमारे ऑटो रेगुलेशन कार्य वो नॉर्मलाइज हो जाती है. अगर मीन आर्टीरियल प्रेशर की एक्सकर्शंस है मोर देन 20% फ्रॉम बेस लाइन, इट नीड्स एक्टिव मैनेजमेंट. एंड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 100 millimeter mercury in hypertensive patients is considered hypotension and needs immediate action. तो मैं कर्व दिखा दूं. ये थी सेरेब्रल ब्लड फ्लो और अगेन सेरेब्रल परफ्यूजन. जो हमारे सेरेब्रल ऑटो रेगुलेशन है वो तकरीबन 60 से लेके 160 तक, ये 50 to 150, तो यहाँ तक होती है. अगर इससे कम आएंगे 50 मीन आर्टीरियल प्रेशर से कम आएंगे तो हाइपोपरफियन होगी, इस्कीमिया होगा. अगर हम 150 मीन आर्टीरियल प्रेशर से ज़्यादा ऊपर जाते हैं तो फिर हाइपरपरफियन होगी, हाइपरीमिया होगा, एडिमा होगा. ये थी रीनल की 80 to 160 है मीन आर्टीरियल प्रेशर. जीएफआर कम होगा अगर मीन आर्टीरियल प्रेशर इससे हम नीचे आएंगे तो जीएफआर कम होगा, और अगर इससे ऊपर जाएंगे तो जीएफआर बढ़ेगा. और रीनल इंजरी के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे. थैंक यू. जी सर. नमस्ते. हेलो. जहांगीर जी 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 सर. हाँ जी. थैंक यू जहांगीर. थैंक यू. गुड प्रेजेंटेशन और विद इन टाइम आपने इसको वाइंड अप भी कर लिया. तो नाउ हाउस इज ओपन फॉर क्वेश्चंस, डिबेट्स, सजेशंस. और इस पे जिसका कोई आंसर क्वेश्चन हो वो अपना हैंड रेज करे या मुझे मैसेज कर दे. हम उस पर वो क्वेश्चन ले लेंगे. फिर इंशाल्लाह आप में से लोग उसमें आंसर करना चाहें, या अल्टीमेटली जहांगीर भी है, अरसलान भी है. थैंक यू.
सर ये क्वेश्चन आया कि why ACE inhibitors and angiotensin receptor blockers are bad choice to control intraoperative hypertension. जी डॉक्टर जहांगीर, आपने इसका जी, हमें थोड़ा बताया भी था, तो इंट्रा एक्सप्लेन। अच्छा, इंट्राऑपरेटिव हाइपरटेंशन को हमने एस इनहिबिटर या एआरबी से मैनेज नहीं करना। मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि मोस्टली ये जितने भी एस हैं या एआरबीज हैं, ये ओरल फॉर्म में है, आईवी फॉर्म में नहीं है। तो हम मॉर्निंग सर्जरी की मॉर्निंग पे अगर इनको देंगे तो उससे प्रोफाउंड एंड रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन होगी, इसलिए हम अवॉइड करते हैं। जी बिल्कुल इंट्रा ऑपरेटिव हाइपरटेंशन के लिए जी जी, उसमें दोनों चीज़ें हैं कि अगर ये पहले से चल रहे हों तो उसमें भी इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन प्रोलॉन्ग है, क्योंकि ये पूरे वो जो हार्मोनल सिस्टम है उसको डिप्रेस करते हैं। इसी तरह इनका जो इफेक्ट है वो बिल्ड होने में भी टाइम लेता है, क्योंकि इन्होंने पूरी जो कैस्केड ऑफ हार्मोन है उनको डिप्रेस करना है, तो तब जाके ये वेज़ोडाइलेटरी इफेक्ट करते हैं। तो ऐसे ही इनका जो रिवर्स ऑफ एक्शन है वो भी उतना ही टाइम लेता है। तो अगर आप पेशेंट हमारा यूज कर रहा है तो पेशेंट इज सपोज टू बी डायलेटेड। तो वेजोडाइलेटेड पेशेंट जब हम एनेस्थीसिया यूज करते हैं, चाहे रीजनल हो या जनरल एनेस्थीसिया, तो हमारे ऑलमोस्ट सारी ड्रग्स जो हैं विद फ्यू एक्सेप्शन सारी जो है वेजोडाइलेटेशन करती हैं, तो वो ऑगमेंट हो जाता है प्रोसेस। तो उससे जो है ना प्रोफ्यूज हाइपोटेंशन जो है वो उसके चांसेस होते हैं। बाकी रही जो अभी ये इनका क्वेश्चन से मैं बात समझाऊं कि अगर ये पूछना चाहते हैं कि इंट्रा ऑपरेटिवली हमें एसी इनहिबिटर या एआरबी की यूज़ करने चाहिए कि नहीं, तो उसमें वो लॉजिक बनती नहीं है कि ये सारे टैबलेट फॉर्म में आईवी फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। तो इंट्रा ऑपरेटिव तो हमारी ऑप्शन यही होती है कि हम शॉर्ट एक्टिंग टाइट्रेटेबल एजेंट को यूज़ करें, जिससे अगर बीपी नीचे आए तो हम उसको बंद करें और उससे वो मेंटेनेंस भी डेवलप हो जाए। तो आईवी ही हमारी ऑप्शन होती है। तो आईवी ऑप्शन में तो ये अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए ये इंट्राऑपरेटिवली तो यूज हो ही नहीं सकता। और सर दूसरा ये कि मैं हमें मॉर्निंग ऑफ द सर्जरी या डे बिफोर सर्जरी एस इनहिबिटर्स और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स को हम स्टॉप भी करवा देते हैं बाद दफा, कि उस दिन ये चीज नहीं लेके आनी, बीटा ब्लॉकर्स लेके आने हैं और ये एक डोज स्किप कर देनी है, तो भी इसी वजह से शायद कि इंट्राऑपरेटिवली हम हाइपोटेंशन को अवॉइड करें। अच्छा, इसमें अरसलान ये बड़ी पुरानी डिबेट है कि एसी इनहिबिटर और एआरबी को बंद करना चाहिए नहीं करना चाहिए। पुरानी गाइडलाइन ना पढ़ेंगे तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं जी कि इसको बंद करना चाहिए। अभी जो रिसेंटली डिबेट्स हैं आप उनको देखें तो उसमें बहुत सारी ओपिनियन ये हैं कि जिस लेवल ऑफ ड्रग आपका पेशेंट जो है वो ऑप्टिमाइज है, उसका बीपी विद इन कंट्रोल है, तो आप उसको ना छेड़ें, चाहे वो एस हो या एआरबी ही चल रहे हो। उसकी लॉजिक वो ये बताते हैं कि जिस पे मेंटेन है आप उसको चेंज करेंगे, नई टैबलेट लेके आएंगे, कम से कम आपको एक हफ्ता लगेगा ऑप्टिमाइज करने में, वो एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अच्छा, एस का जो फिलोसफी है कि ये करता क्या है, वेजोडाइलेटेशन करता है, नो प्रॉब्लम, वेजोडाइलेटेशन करेगा। हमारे पास बड़े सोफिस्टिकेटेड वेजो कंस्ट्रिक्टर हैं, शॉर्ट एक्टिंग है, हम फिनाइलेफेरिन यूज कर लेंगे, उसको हम कंट्रोल कर लेंगे। कि अगर उसका कार्डियक फंक्शन वैसे ही बहुत अच्छा है तो आप प्रीलोड कर सकते हैं, अच्छा, उससे आपका ऑलमोस्ट प्रॉब्लम वो एड्रेस हो जाता है। अगर फिर भी कोई इशू हो तो आप फिनाइलेफेरिन से हेल्प ले लें। तो अब ये स्कूल ऑफ थॉट भी है। तो मेरा ख्याल है इसमें कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। मेरी अपनी ये प्रैक्टिस है कि मेरे पास जो प्री ऑप के लिए पेशेंट आता है तो मैं ये देखता हूँ कि जिस कम्बिनेशन ऑफ ड्रग के ऊपर और डोज पे पेशेंट कंट्रोल में आ गया है उसको ना छेड़ा जाए। जी सही है सर। सही है। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था कि व्हाई बीटा ब्लॉकर्स आर प्रेफर्ड ओवर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स। इसका मैंने आंसर आपने दे ही दिया मिला के, कि भाई जो भी चीज आपने बताई है वो इसी में आंसर हो गई है। हाँ जी। इसमें एक चीज जो प्रेजेंटेशन में थी कि बीटा ब्लॉकर्स को हम बीटा ब्लॉकर विथड्रॉल से इंट्राऑपरेटिव हाइपरटेंशन होगी, तो इसलिए बीटा ब्लॉकर हम कंटिन्यू करते हैं। बाकी सर ने जबरदस्त बता दिया है कि जिस चीज पे मेंटेन है पेशेंट को एज सच चलने दें, बाकी जो इंट्रा ऑपरेटिव है वो विजिलेंट रहें और मैनेज करें अकॉर्डिंग। हाँ जी, बीटा ब्लॉकर का मैं ऐड कर दूं कि बीटा ब्लॉकर की तो रिकमेंडेशन है कि अगर नहीं भी चल रहा तो चला लें, कि ये आपको कार्डियक स्टेबिलिटी देता है
और हार्ट रेट कंट्रोल करता है। तो बल्कि आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे ना ये इस्कीमिक हार्ट डिजीज, तो उसकी तो रिकमेंडेशन ही यही है कि इस्कीमिक हार्ट डिजीज वाले पेशेंट में अगर नहीं भी चल रहा तो उसको चलाएं। और इसको रोकने का फायदा होता है, ये नुकसान होगा कि रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया में चला जाता है पेशेंट। अब जब टैकीकार्डिया होता है तो आप बड़ा अच्छा समझते हैं कि उसमें जो है जो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है उसका मिसमैच हो जाता है। तो बीटा ब्लॉकर तो कहते हैं कि चलाना चाहिए, बेनिफिशियल है। बाकी उससे एक और कैल्शियम, क्वेश्चन है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के बारे में क्या ख्याल है? हाँ जी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है, जो प्री ऑपरेटिवली आपने एंटी हाइपरटेंसिव अगर कोई एडवाइस करना है तो बेस्ट ऑप्शन इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। उसमें आप यूजुअली देखते होंगे कि आपके एनेस्थेटिस्ट कहते हैं कि जी 5 mg नॉर्वेसिक दे दो, अम्लोडिपिन। तो उसकी रीज़न यही है कि एक तो इसका ऑनसेट अर्ली है और दूसरा ये करता ये भी वेजोडाइलेटेशन है, लेकिन इसका इतना प्रोलॉन्ग इफेक्ट नहीं है, इसको हम मैनेज कर लेते हैं। और हार्मोनल कैस्केड जो एआरबीज और वो एस जो है वो डिस्टर्ब करते हैं, उस तरह का मैकेनिज्म नहीं है। तो इट्स ए रिलेटिवली बेटर ऑप्शन, इसको अडॉप्ट करना चाहिए। और मोस्टली आप ये देखेंगे कि ये एडवाइस किया जाता है अगर किसी को इमीडिएट प्री ऑफ कोई अगर सर्ज ऑफ हाइपरटेंशन है तो यही एडवाइस होता है। तो एक और क्वेश्चन आया है, वो बहुत कॉमन सी चीज है कि अक्सर हम सब लोग ही देखते हैं कि पेशेंट आता है ओटी टेबल पे तो उसकी पहली रीडिंग ही 180/120 आती है, तो मोस्टली सीनियर्स कहते हैं इसको 2 cc डॉर्मिकम लगा दो या 5 mg किंस लगा दो। तो इसको लगाने के बाद मोस्टली बीपी डाउन होता है एंड देन मोस्टली हम या तो केस करवा देते हैं। तो इसके बारे में मतलब सही बात है, ये तो ओटी टेबल हाइपरटेंशन जिसको हम एंजाइटी वाली बात आ जाती है इसमें, इस पे आप अपनी ओपिनियन बताइए। देखिए बात ये है कि जो है ना, हाइपरटेंशन एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है एनेस्थीसिया की, इट्स अ रिलेटिव। और रिलेटिव पे भी 180 का एक लाइन होती है, तो मोस्टली आप लिटरेचर पढ़ेंगे तो 180 पे जाकर वो बात करते हैं कि उससे ऊपर जो आप एनेस्थीसिया की तरफ जाते हैं तो रिलेटिवली कम्प्लिकेशन उसकी रेशो ज़्यादा है, 180 से नीचे कम्प्लिकेशन रेशो कम। अच्छा, बाकी ये बात रही कि ओटी में आता है तो 180 से ऊपर होता है। डेफिनेटली ये जो ऑपरेशन थिएटर या वाइट कोट हाइपरटेंशन जिसको हम कहते हैं, उसका एलिमेंट तो डेफिनेटली होता है। तो उसका यही तरीका होता है कि आप पेशेंट को एंडोलिटिक दे दें, उसकी एंडोलिसिस करें, उसके बाद देखें कि उसका बीपी कहाँ पे सेटल हो रहा है, तो वो एक्चुअल बीपी है। तो ये कोई गलत लॉजिक नहीं है कि अगर पेशेंट का ओटी में आते ही रीडिंग ज़्यादा आ रही है और पीछे से वो ब्लड लेके आ रहा था, ड्रग्स और कंट्रोल चल रहा था, तो उसको डॉर्मिकेम देने से अगर वो सेटल हो जाता है तो आई थिंक देयर इज नो हार्म टू गो फॉर सर्जरी। और अगर वो पेशेंट जो है पहले से नॉन हाइपरटेंसिव नहीं था और उसका बीपी कोई हायर साइड पे आया है, उसकी लिमिट अगर 180 तक आ रही है तो फिर उसको रोक लें। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर नॉन हाइपरटेंसिव है और वो ड्रग्स ले रहा है और उसके सर्जरी है, डॉर्मिकेम से सेटल हो गया, इसका मतलब ये है कि वो सेटलिंग फेज में है, उसकी ऑटो रेगुलेशन जो है वो रीएडजस्ट होती रही है, वो उतना डेंजरसली बिहेव नहीं करेगा। जो प्रीवियसली डायग्नोज पेशेंट नहीं था, टेबल पे ही जाके डायग्नोज हुआ, आपने डॉर्मिकेम दिया, उसके बावजूद भी वो सेफर रेंज में नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि वो अनकंट्रोल था, उसकी ऑटो रेगुलेशन जो है वो एडजस्ट नहीं हुई, उस पेशेंट को ऑप्टिमाइज जरूर करना चाहिए। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्रीवियसली डायग्नोज पेशेंट नहीं है वो ज़्यादा डेंजरसली बिहेव करता है रादर देन पेशेंट already diagnosed and on antihypertensive drugs. थैंक यू सर। एक और वैसे सवाल मेरा आया अपना एक हुआ है। क्वेश्चन है, मतलब हम लोग अक्सर देखते हैं कि डायबिटिक्स के बारे में सर आपको क्या ख्याल है? मोस्टली लोग डायबिटिक्स स्टॉप करवा देते हैं मॉर्निंग पे, या कुछ लोग कहते हैं जैसे आपने कहा कि जो रजीम चल रही है उसको चलने दें। तो डायबिटिक्स के बारे में सर क्या स्पेसिफिक? देखिए असल में रूल ऑफ थंब जो मुझे समझ में आया वो तो यही है कि जिस पे कंट्रोल है उसी पे चले। डायूरेटिक्स का भी यही फिलोसफी है कि डायूरेटिक्स से आपका पेशेंट जो है ना वो वॉल्यूम डिप्लीटेड होता है। तो जब आप इवन स्पाइनल भी देते हैं तो वो वेसल उसकी खाली है, जो ही थोड़ा सा वेजो डायलेट करेगा तो बिल्कुल नीचे उसका बीपी जा गिरेगा। तो इस कंडीशन को थोड़ा अवॉइड करने के लिए कहते हैं कि बेटर टू अवॉइड जो है ना वो क्या कहते हैं डायूरेटिक्स। तो अगर चल रहे हैं
तो फिर नहीं रोकना चाहिए। उसका पता क्या होता है कि अगर एक पेशेंट की जो रीनल फंक्शन है वो एक लेवल ऑफ डायूरेटिक के ऊपर एडजस्ट हुआ हुआ है, तो अगर आपने बंद कर दिया ना तो वो रिफ्लेक्सली उतना रिटेंशन भी करेगा। और ये एक बात ध्यान में रखें कि डायूरेटिक्स वही पेशेंट ले रहा होता है एग्जैक्टली जिसको कोई मसला है कि यहाँ हार्ट का प्री लोड कम करना है ना आपने, यही मकसद हुआ ना, तो इसका मतलब उसका कोई प्रॉब्लम है तो डायूरेटिक चल रहे हैं। तो अब उस पेशेंट को जब आप डायूरेटिक रोकेंगे और उसकी रिटेंशन होगी, साल्ट रिटेंशन भी होगी, फ्लूइड रिटेंशन भी होगी, तो वो बैडली बिहेव कर सकता है। तो इसमें मेरी अपने तरफ से एक एडवाइस आपको यही होगी कि अगर तो चल रहा है डायूरेटिक्स पे, तो जिस पे चल रहा है उसी पे मेंटेन ले लें और अपने ज़हन में रखें कि ये वॉल्यूम डिप्लीटेड पेशेंट है, इसको मैंने वॉल्यूम से रिसेसिटेट करना है। और साथ मैंने ये भी जहन में रखना है कि ये पेशेंट जो है वो ओवरलोड में ना जाए और पल्मोनरी एडिमा की तरफ ना जाए। अच्छा, इसमें मैं जो करता हूँ, मैं आपको अपना एक ट्रिक बता देता हूँ प्रैक्टिस का, कि ऐसे जितने जो पेशेंट आते हैं ना जो डायूरेटिक्स पे होते हैं, या इवन जिनका कार्डियक फंक्शन थोड़ा कम होता है, तो इवन मैंने रीजनल एनेस्थीसिया दिया, अब उसमें प्री लोड होता है, आपका पेशेंट बिल्कुल ठीक चला जाता है। प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, जब उसका इफेक्ट खत्म होता है स्पाइनल का या एपिड्यूरल का, तो उसकी टोन वापस आती है। जब टोन वापस आती है तो वो डायलेटेड वेसल के अंदर जो फ्लूइड उसने अकोमोलेट किया हुआ था वो सडनली हार्ट की तरफ वापस आता है, तो हार्ट वहाँ पे बैठ जाता है। तो उसमें मैं जो एडवाइस करता हूँ ऐसे पेशेंट में कि मैं जो सर्जरी का डॉक्टर है, इवन जो रिकवरी पे जो स्टाफ खड़ा होता है, उनको स्पेसिफिकली ये डायरेक्शन दे के जाता हूँ कि जब इसकी टांगे मूव करने लगे उस वक्त आपने लासिक्स देना है इसको, ठीक है। और जहां पे रिकवरी का कोई अच्छा सही आपको ना लगता हो कि उसको फॉलो करने का इशू हो, तो जब आप शिफ्ट कराने लगे उस वक्त उसको लासिक्स दे दें, डायूरेटिक्स। तो ये मैं अपना एक ट्रिक यूज करता हूँ। तो बाकी ये है कि बेटर अगर चल रहा है तो उसको चलने दें। थैंक यू सर। सर दो सही सही सवाल हैं, एक है कैन बी यूज लिग्नोकेन इन्फ्लुएन इंट्रा ऑपरेटिवली, और दूसरा है प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर पोस्ट एक्सटुबेशन हाइपरटेंशन। तो इस पे थोड़ी सी रोशनी डालो। अच्छा जी, पहली बात जो है ना जाइलोकेन की, देखें जाइलोकेन बड़ा ज़बरदस्त आपको इफेक्ट देता है कि इसका बेसिक मैकेनिज्म तो सिंपैथेटिक एक्टिवेशन को रोकना है। तो वो आप जब देते हैं तो सिंपैथेटिक एलिमेंट कम होता है, आपको बीपी कंट्रोल में हेल्प भी मिलती है। समटाइम ये होता है, मैं भी खुद भी करता हूँ कि जब हम जो है ना सपोज करें ये ब्रेन सर्जरी में ख़ास तौर पे, कि उसमें बड़ा ना एक डबल एज किस्म की चीज़ चल पड़ती है कि न्यूरोसर्जन यूजुअली एड्रीनालीन विद जाइलोकेन इसका लोकल लगाते हैं और काफ़ी हैवी डोज में लगाते हैं। अब उससे क्या होता है कि वो बीपी ऊपर जाता है। अच्छा, उसके साथ वो फौरन ये कहते हैं जी कि बीपी भी कम रखो क्योंकि ब्रेन जो है वो उसकी वो टेंस हो जाता है। तो अब ये बड़ी मैराथन किस्म की एफर्ट बन जाती है, हमारे लिए बड़ा चैलेंज बन जाता है कि उधर से उन्होंने एड्रीनालिन दे दिया है, वो ऐसा ऐसा अब्जॉर्ब हो रहा है, और साथ वो कहते हैं जी बीपी भी आपका जो है ना 90 के करीब होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में मैंने देखा है कि जाइलोकेन बड़ा हेल्प कर जाता है कि आप जाइलोकेन दें और प्रोपोफोल उसका इन्फ्यूजन चला दें, और अगर वो नहीं है तो आइसोकिट को भी यूज़ कर लें, तो ये हेल्प काफ़ी हद तक हो जाती है। तो यू कैन बी यूज़, जाइलोकेन को आप यूज़ कर सकते हैं, और लेकिन इसको प्राइमरीली हाइपोटेंसिव एजेंट के तौर पे यूज़ ना करें। इसको यूं ही समझें कि आप सिंपैथेटिक एक्टिवेशन का जो एलिमेंट है उसमें आपको हेल्प मिलेगी, और एक एनाल्जेसिक का इफेक्ट इसका मिलेगा पूरी बॉडी में। और दूसरा क्या क्वेश्चन था? दूसरा था सर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर पोस्ट एक्सटुबेशन हाइपरटेंशन, वो स्ट्रेस पोस्ट रिस्पॉन्स के बारे में। एक्सटुबेशन, जब आप एक्सटुबेट कर रहे होते हैं उस वक्त जो सर्ज जाती है, जी, उसके हाँ, बाद। उस सर्च का तरीका ये कि उसमें ना जो आपकी टेक्निक है डीप एक्सट्रूबेशन और अवेक एक्सट्रूबेशन वाली, तो इसको आपने डिसाइड करना है कि अगर आप समझते हैं कि एयरवे यू आर कॉन्फिडेंट टू कंट्रोल, तो उसमें आप फिर डीप एक्सट्रूबेशन करें। डीप एक्सट्रूबेशन में भी आप एक्सट्रूबेशन के टाइम पे ज़ाइलोकेन यूज़ कर लें, वो बड़ा हेल्पफुल होता है। ऐसे जैसे आप यानी इंटोबेशन पे ज़ाइलोकेन यूज़ कर लेते हैं, उससे जो प्रेशर रिस्पॉन्स है वो ब्लंट हो जाता है, तो ऐसे ही ये एक्सट्रूबेशन पे भी आपको हेल्प करता है। अब डीप करने का तरीका जो है वो, मेरा अपनी प्रैक्टिस ये है कि पेशेंट की गैसेस चलती रहती हैं, रिलैक्सेंट के इफेक्ट से वापस आ गया, रिवर्सल दे दिया, सक्शन कर ली
गैसेस चलती रही। जब आप समझ दें कि एक ऑप्टिमम टाइडल आ गया है तो एयरवे डाल के ट्यूब निकाल और उसके बाद गैसेस बंद कर। लेकिन इसमें आपने ये, आपकी असेसमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आप एयरवे को कंट्रोल करिए, जिसको कहते हैं ना कैन वेंटिलेट। अगर कैन नॉट वेंटिलेट है यानी कि डिफिकल्ट एयरवे, तो फिर इसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। तो ये बहुत ज़बरदस्त आपको स्मूथ रिकवरी देता है। और दूसरा है आप अवेक पेशेंट एक्सटूबेशन करें। अवेक एक्सटूबेशन का भी तरीका ये है कि पहले आप गैसेस चलाते रहें और पेशेंट का जो है ना इफेक्ट वापस आने दें। रेस्पिरेशन का जो इफेक्ट, जो लेवल ऑफ टाइडल वॉल्यूम है उसको चेक करते रहें। जब आप समझें कि उसने ऑलमोस्ट नियर टू नॉर्मल टाइडल जनरेट कर लिया है, उस वक्त गैसेस को बंद करें। जब डीप था, रिवर्सल आपने उस वक्त दे देना है, उसी वक्त सक्शन कर लेनी है। और जब गैसेस बंद करनी है, अब पेशेंट को नहीं छेड़ना, अब बिल्कुल सुकून से साइड पे होकर बैठ। उस टाइम में ना सक्शन करें, ना ट्यूब को छेड़ें, उसको खुद से ब्रीथ करना। आप देखेंगे कि पेशेंट जो है ना बिल्कुल लाइट होता जाएगा और एक पॉइंट आएगा कि आप उसको आवाज़ देंगे कि आंखें खोलो, उसने आंखें खोली हैं, बस उसी टाइम को फौरन ट्यूब निकाल। या उसका दूसरा तरीका होता है कि आप डिस्कनेक्ट कर दें सर्किट को पीछे से और जो है ना डीप पे ही उसकी जो कफ जो बैलून है उसको डिफ्लेट कर दें। तो आप आवाज़ दें और उसे कि आपने ट्यूब निकाल दें, अपने हाथ से निकाल दें। तो ये है अवेक एक्सट्रोबेशन। हम जहाँ पे डिस्टर्ब करते हैं ना कि पार्शियल जो होता है डीप और अवेक के बीच में जब सक्शन करते हैं और उस टाइम में जब हम एक्सट्रोबेट करते हैं, तो उसी से स्पाज्म के इशू बढ़ते हैं और उसी की वजह से जो है ना ये सर जाती है बीपी के ऊपर नीचे। तो ये बड़ी एक ज़बरदस्त स्किल है डीप एंड अवेक एक्सट्रोबेशन। और ये जब आप खुद से करना शुरू करेंगे ना, तो तभी आपको उसका मजा आएगा और आपको आइडिया होगा कि बीपी किस तरह से स्मूथ चले। और इस पॉइंट को कि आपने बीच वाले फेज में सक्शन नहीं करनी, उसका ट्यूब नहीं छेड़नी, उसको जो है ना उठाना नहीं है, बस उसको स्मूथ पड़े रहना। और जब वो खुद आंखें खोले उसे क्या ट्यूब अपने खुद निकाल लो या आप निकाल लो। तो ये थोड़े ट्रिक्स हैं, इसको अगर यूज कर लें तो ये एक्सटूबेशन वाली हाइपरटेंशन भी कंट्रोल होती है। अच्छा सर, इसमें एक दो पॉइंट्स जो मैं कुछ सीनियर्स ने एडवाइस किए थे और कुछ मैंने पढ़े भी थे, एक दो अप्लाई भी किए हैं काफी दफा। एक सर है बेले मेथड ऑफ एक्सटूबेशन, तो उसमें सर हम डीप ही ट्यूब निकाल देते हैं और ट्यूब को रिप्लेस कर देते हैं एलएमए आई जेल के साथ। तो जैसे ही पेशेंट उठता है तो आराम से अपना आई जेल और एलएमए खुद ही निकाल लेता है। तो ये भी एक टेक्निक है, इससे एयरवे भी आप प्रोटेक्ट रह जाता है आपका और पेशेंट भी अच्छा एक्सटूबेट हो जाता है। दूसरा सर ये जो आपने बताया डीप एक्सटूबेशन का, इसमें से कुछ लोगों को ये मैंने भी देखा एक्सपीरियंस कि जैसे ही टाइडल अच्छा जनरेट होता है, गैसेस ऑन होती हैं, तो ट्यूब निकाल लेते हैं, रिवर्सल बाद में देते हैं, ताकि वो जो आप कह रहे थे ना एक फेस आता है जिसमें डीप भी होता है पेशेंट और वेक भी होता है, तो उससे हम इस तरह थोड़ा सा बच भी जाते हैं। बाकी से हर किसी के अपने एक्सपीरियंसेस भी हैं। हाँ, तो ये ये दो हर कुछ नए बंदे के अपने एक्सपीरियंसेस जो रिफ्लेक्स है ऐसे। जी सर। ये जो आपका है ना एलएमए वाला, तो ये एक अच्छी जी टिप सर। है। इसको मेरे ख्याल यूज करना, ये सेफ हो जाता है आपका ना, जिसमें आपको डिफिकल्ट जी सर, एयरवे लग एयरवे रहा है। सेफ हो जाता है, एयरवे तो सेफ हो और जाता जो है। जी सर। बिगिनर हैं, खास तौर पे हमारे ट्रेनीज हैं, तो उनके लिए तो सबसे बड़ा मार्जिन ही यही होता है कि वो सेफ खेलें। तो सेफ हो उनके जाते हैं लिए और बाद में जब स्पैज्म के वक्त जब हसल बसल होती है ना, उससे बचना बच जाता है काफी। तो ये ज़्यादा अच्छी टिप है कि इसको यूज़ कर लेंगे, उस एलएम में डाल लें और आराम से उसे उठने दें। और एलएम में जो है उसको खुद ही जब उठ जाएगा तो खुद निकाल लें। अच्छा, इसमें उठने एक और चीज़ मैं भी यूज़ करता होता हूँ, खुद ही निकालेगा उसे। नेजल एयरवे। नेजल एयरवे की मैंने देखा है उससे भी स्मूथनेस ज़्यादा अच्छी है ओरल एयरवे की निस्बत ना। तो आप नेजल एयरवे डालें, यानी कि जिस टाइम पे आप एलएम में कह रहे हैं आप उस टाइम पे नेजल एयरवे डालें, तो उससे भी काफी स्मूथ आता है। और फिर जी मैं निकालता नहीं हूँ, पेशेंट चला जाए रिकवरी में, या उठ जाएगा बिल्कुल अलर्ट हो जाएगा, वो खुद ही कहेगा ये मेरा निकालो निकालो। सही है। डॉक्टर इरम सर ने एक और सवाल क्वेश्चन है किया। कि when high pressures actually make patient bleed in the surgery, जब सर्जन परेशान होते हैं वो कहते हैं प्रेशर डाउन करो, ब्लीडिंग हो रही है, तो what are actually those pressures? देखिए, ये डिपेंड ऑन सर्जरी कि आप सर्जरी कौन सी करवा रहे हैं। आप ब्रेन करवा रहे हैं, आप कोई जो है ना क्लोज कैविटी की सर्जरी है, या जो है अब्डोमेन की सर्जरी है जिसमें इतना वास्कुलर एरिया नहीं है, या लिम्स की सर्जरी है, तो उसमें डिफरेंस होता है। अब ब्रेन में ज़्यादातर आपको इशू होता है, या जो कैविटी की जो सर्जरी है उसमें,
तो उसमें सेफर रेंज जो है वो सिस्टोलिक लेस देन 100 है। सिस्टोलिक जब 100 से ऊपर जाता है तो वो डेफिनेटली ब्लीडिंग का पॉइंट बढ़ाता है। और इसमें बहरहाल एक अभी जो है ना ये न्यूरो सर्जरी में इनकी प्रैक्टिस ये है न्यूरो सर्जन की कि ये हाइपोटेंसिव एनेस्थीसिया में लाइक करते हैं कि उससे ना इनको ब्लीडिंग कम मिलती है। लेकिन उसके ऊपर एक बहुत बड़ा डाटा आया और जिससे मैं जिस सेंटर में काम करता हूँ वहाँ पर मैंने न्यूरो सर्जन की प्रैक्टिस को चेंज भी कराया कि स्पाइन सर्जरी जो हाइपरटेंसिव में रिलेटिवली हाइपरटेंसिव यानी कि 140 सिस्टोलिक पे आपने अगर मेंटेन किया तो उसका आउटकम ज़्यादा अच्छा आता है। तो उससे वो फिलोसफी आई कि जो स्पाइन की परफ्यूजन है वो जब आप थोड़ा सा रिलेटिवली हाइपरटेंसिव की तरफ जाते हैं तो ज़्यादा वो चलती है। तो इस पे फिर इनसे करवाया मैंने, तो उस पर इन्होंने भी डिफरेंस इन्हें लगा। हाँ वो उनको रहा जी कि बीपी वो थोड़ी ब्लीडिंग का इशू आता है तो वो टॉलरेट कर लेते हैं। और दूसरा ये है कि आप ना अपना न्यूरो सर्जरी या जहाँ पे हाइपोटेंसिव एनेस्थीसिया की बात है जिसमें ये एड्रेनालिन विद ज़ैलोकेन यूज़ करता है सर्जन, तो उसको इस बात पे कन्विंस करें कि सर अगर आप यूज़ करेंगे ना एड्रेनालिन तो बीपी कंट्रोल करने के लिए जो हमें ड्रग यूज़ करनी पड़ेंगी उससे कास्ट बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा उस और ब्लीडिंग भी आपको वैसे ही तंग करेगी। उससे बेहतर ये है कि आप एड्रेनालिन यूज़ ना करें और मैं आपको कंट्रोल यानी बीपी कंट्रोल वाला जो एनेस्थीसिया वो दे देता हूँ जिसे हाइपोटेंसिव एनेस्थीसिया कहते हैं। उससे कास्ट भी बचेगी और आपकी ब्लीडिंग का भी इशू नहीं होगा। तो उससे ये होता है कि आप ट्रबल से बच जाते हैं। ये बहुत जो है ना ट्रबलिंग चीज़ है कि जब वो ज़ाइलोकेन लगा वो एड्रेनालिन लगा लेते हैं अब बीपी कंट्रोल नहीं होता, उधर से वो दाड़े मारता है सर्जन के यार ब्रेन बाहर आ रहा है और आप इधर से परेशान हुए हुए होते हैं। तो ये मेरे ख्याल में थोड़ी सी नेगोशिएशन कर लेने से ना काफ़ी मसला हो जाता है। डॉक्टर अज़का ने मेरे हैंड रेज किया था, उनका क्वेश्चन है। सर एक सवाल आया हुआ है जी कि sir, enumerate various placement of BP cups like arm, thigh. If sometime we remain unable to place on arm or thigh, especially in ortho cases. मतलब ये BP cup से related ही सवाल कर रहे हैं। उसमें देखें जो स्टैंडर्ड तो वही है, हम जो है ना आर्म पे लेते हैं तो लेग पे जो है वो उसमें अगर आपको इशू है आर्म यूज करने का तो लेग में रिलेटिवली आपको बीपी ज्यादा मिलता है। अगर आर्म के ऊपर आ रहा है 120-80 तो आप लेग पे लगाएंगे तो वो 130 से ऊपर ही मिलेगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं। Thank you, sir. जी किसी और का क्वेश्चन? आई थिंक टाइम भी कंप्लीट होने वाला है तो इसे यहीं पे क्लोज करें। बहुत शुक्रिया सर। जी सर, जी अच्छी डिस्कशन रही। जी थैंक यू जहांगीर वंस अगेन सर हैविंग आपका शुक्रिया। वंडरफुल प्रेजेंटेशन। और इस टॉपिक को आपने बड़ा टाइमली भी इसको किया भी वाइंड अप, हमें डिस्कशन का भी अच्छा टाइम मिल गया। तो थैंक्स एवरीबॉडी, विल सी यू ऑन नेक्स्ट फ्राइडे एंड ऑन नेक्स्ट फ्राइडे टॉपिक विल बी इस्कीमिक हार्ट डिजीज एंड एनेस्थीसिया मैनेजमेंट। तो उसमें कोई वॉलंटियर फ्रॉम मुल्तान, आउट ऑफ मुल्तान एंड आउट ऑफ पाकिस्तान कहीं से भी कोई करना चाहे तो डॉक्टर अरसलान को या मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लें। अदरवाइज फिर हम देख लेंगे, अगर कोई भी नहीं होता तो फिर देखेंगे थ्रू हमने करवाना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।